महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विलास जगदाळे, एमडी होम्योपैथ, औरंगाबाद महाराष्ट्र से आज 24 जून 2022 को आपके साथ लाइव हूँ और मोदी जी क्या कह रहे हैं सुनते हैं। विश्वास है कि आज की चर्चा से हमारे ब्रिक्स संबंधों को और मजबूत करने के कई सुझाव निकलेंगे। Mr. Modi thanked the BRICS member countries for organizing yoga events on the International Day of Yoga. Chinese President Xi Jinping, South African President Cyril Ramaphosa, Brazilian President will file her nomination today. The former Jharkhand governor arrived in New Delhi yesterday. She met Prime Minister Narendra Modi, Vice President M. Venkaiah Naidu, Home Minister Amit Shah and Defence Minister Rajnath Singh. She also met BJP President JP Nadda and other top leaders of the party. Prime Minister Narendra Modi said in a tweet, Ms. Murmu's presidential nomination has been appreciated across India by all sections of the society. He said, Draupadi Murmu's understanding of grassroots problems and vision for India's development is outstanding. Meanwhile, YSR Congress President and Andhra Pradesh Chief Minister Jagan Mohan Reddy has extended support to Draupadi Murmu as presidential candidate of the NDA. The party said that Jagan Mohan Reddy believes that it falls in line with the emphasis he has always given to the representation of the SCs, STs, backward classes and minority communities. YSR Congress Rajya Sabha MP Vijay Sai Reddy and Lok Sabha MP Mithun Reddy will be present during the filing of nomination by Ms. Murmu today. Himachal Pradesh Chief Minister Jairam Thakur told AIR News that this is a historic moment as a tribal woman has been nominated for the topmost post of the country. ऐतिहासिक पल है भारत के इतिहास में एक ट्राइबल महिला को सर्वोच्च पद पर जो है वो करने के लिए तय किया है हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत नड्डा जी को, अमित शाह जी को, और विशेष तौर से द्रौपदी मुर्मू जी जिस बैकग्राउंड से है वो महिला होने के साथ साथ ट्राइबल भी है और बहुत विकट और कठिन परिस्थितियों के दौर में से जिंदगी के सारी चीजों को देखा उन्होंने और उसके बाद समाज के लिए जज्बे के साथ काम करने की क्रम है। उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने और हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने जो तय किया है, मैं समझता हूँ ये ऐतिहासिक निर्णय है जो लंबे समय तक याद किया जाएगा। और निश्चित रूप से हमें ये संदेश आया है कि आज राष्ट्रपति जी के नॉमिनेशन की प्रक्रिया में हम सब लोगों को शामिल होना है। Opposition's presidential candidate Yashwant Sinha will file his nomination on Monday. The last date for filing of nominations is 29th of June. The polls, if necessary, will be held on 18th July and counting will be taken up on 21st July. The rebel MLAs of Shiv Sena have released a video unanimously choosing Eknath Shinde as the leader. In a video released from the Guwahati hotel where they are currently lodged, the rebel Maharashtra MLAs authorized Mr. Shinde to take any decision. The visually elated Shiv Sena MLAs have threatened the existence of the Maha Vikas Aghadi MVA government in Maharashtra, while challenging Uddhav Thackeray's decision to form an unnatural alliance with the Nationalist Congress Party NCP in Congress. The Shinde camp has asked the Sena chief to ally with the BJP for the sake of Hindutva. Our Mumbai correspondent reports that Shiv Sena is trying hard to save the NDA government in Maharashtra and using various tactics to pressurize the rebel MLAs. Similarly, the rift in the constituent parties of MBA government is also widening with a continuously changing political scenario in the state. More in this report. Shiv Sena on Thursday sought disqualification of its 12 MLAs, including Eknath Shinde, failing to attend the legislative party meet and filed a petition before Deputy Legislative Assembly. Shiv Sena's delegation met Narhari Jirwal yesterday and demanded action against the 12 MLAs. But Eknath Shinde has dared Shiv Sena not to threaten them and said that he knows their gimmicks and has the knowledge of the law very well. He said that instead the action should be taken against them as they have sent this letter without having sufficient number. Shinde has also wrote a letter to the Deputy Speaker of Maharashtra Assembly and also sent the copies to the Governor and Secretary of Legislative Council, which has signatures of 37 Shiv Sena MLAs. This letter has sought the approval for his appointment as the leader of the Shiv Sena Legislative Party and also the appointment of Bharat Shetty, Chief Whip of the party. Shailesh Patil, AR News, Mumbai. Registration process for recruitment of the first batch of Agniveers in the Indian Air Force under the newly launched Agnipath scheme is beginning from today. Interested candidates can apply for the recruitment process online on the official website at agnipathvayu.cdac.in. Minister of State for Defence Ajay Bhatt said the youth who are interested in joining the army
may begin registering themselves from today. हमें आज से प्रार्थना पत्र देना प्रारंभ हो गया है। आप कोई भी हमारे जो हम As per the notification released by Indian Air Force, the online registrations for Agniveers will begin from 10 a.m. There is no change in the process of induction, entry level. मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। मैं आपको न्यूज़ सुना रहा हूँ और इसी न्यूज़ पे मैं आपसे बात करूँगा। सारे न्यूज़ सुन लीजिए, क्या क्या न्यूज़ आ रही है। राष्ट्रपति न्यूज़, शिवसेना न्यूज़ और आपका अग्निवीर, अग्निपथ की तरह से अग्निवीर की भर्ती की न्यूज़, ये सारे न्यूज़ मैं आपको सुना रहा हूँ और इस पे सब पे मैं बात, जैसे ये न्यूज़ ख़त्म होती है मैं पहुँच जाता हूँ, मैं आपको इस पे बात करूँगा। Andhra Pradesh Chief Minister Jagan Mohan Reddy extends support to Draupadi Murmu. Rebel Shiva Sena MLAs declare Eknath Shinde as their leader. Indian Air Force to start registration under Agnipath recruitment scheme today. Jammu and Kashmir to host G20 meetings in 2023. 5-member coordination committee formed for the purpose. First consignment of India's earthquake relief assistance for people of Afghanistan reaches Kabul. Prime Minister Narendra Modi says centre is monitoring flood situation in Assam and will provide all assistance to the state. IMD says southwest monsoon will cover the entire country by 6th of July. And in cricket, Indian East registered 34-run victory over Sri Lanka in first T20 International at Tambula. For quick news updates round the clock, us on our Twitter handle @AIR News Alerts. कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम You are listening to Red Indies Radio Festival. Hindi Bajao. Only on Red FM. Super hits. Red FM. नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जैसे आपने अभी सारी न्यूज़ सुन ली है, क्या क्या कमेंट हुए। कौन है प्रशांत त्रिवेदी, मेरे को नहीं पता है। ही इज नॉट अवतार। सुन लो इसको। ऐसा कोई भी उठता है और बोलता है मैं अवतार हूँ और ये हूँ वो हूँ, इन चीज़ पे ट्रस्ट मत कीजिए। गुड मॉर्निंग, नमस्कार नमस्कार विक्की बाहिर जी, चैतन्य नागरे जी, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। गुड मॉर्निंग मीना शाह जी। तो दोस्तों, सबसे बड़ी न्यूज़ है राष्ट्रपति चुनाव। मैंने आपको पहले बोला था मैंने आपसे कि जो भी उम्मीदवार दिया जाएगा ना, वो पूरा का पूरा कंट्रोल रहेगा। अब जो मुर्मू जो है, उनका नाम आ रहा है महामहिम राष्ट्रपति के लिए, वो ट्राइबल कम्युनिटी से है। और ट्राइबल कम्युनिटी, आपको बताऊं मैं, 6 महीने से ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो जल, ज़मीन और जंगल के लिए आंदोलन कर रही है। तो अब
जैसे कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया, तो उन्होंने सारा रिजर्वेशन खत्म कर दिया। झगड़ा लगा के माइनॉरिटीज़ और हाई क्लास में ऐसा दिखाया कि माइनॉरिटीज़ को ज़रूरत नहीं है, और ओबीसी रिजर्वेशन और सारा रिजर्वेशन जो है उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब यही जो चीज़ है ये अब होने वाली है ट्राइबल जो आदिवासी लोग हैं उनके साथ। ये जो ट्राइबल लोग आंदोलन कर रहे हैं, इन ट्राइबल लोगों को खामोश करने के लिए इनको एक लॉलीपॉप दे रहे हैं ये मुर्मू जी के नाम से। अब मुर्मू जी एक तो आदिवासी है, और उनको ऐसे दिखाया जाए कि हमने आपके ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है कि आपको हमने राष्ट्रपति बना दिया, हम जो बोलेंगे वो डॉक्यूमेंट पे साइन कर दो। सारे बिल जो पेंडिंग पड़े हैं, वो कृषि बिल हो, न्यू पब्लिक हेल्थ बिल हो, या फिर आपका मार्शल लॉ बिल हो, या फिर पुलिस कंट्रोल बिल हो, या कोई भी, ये सारे के सारे जो है ना ये पास हो जाएंगे। कल एक ग्रुप पे गया था मैं टेलीग्राम के, वहाँ पे बातें सुन रहा था। इन लोगों को अभी भी बेसिक सवाल इनकी ज़िंदगी सॉल्व नहीं हो रहे हैं, और ये राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होगा इनको कब समझेगा। ये एक बात होगी। सेकंड बात है आपके ये शिवसेना का जो ड्रामा चल रहा है, ये ड्रामा है। ये मैं आपको कुछ नाम गिनाता हूँ। संदीपान भुमरे, संजय शिरसाट, बोरनारे अन्ना, बोरनारे सर, और कुछ है मुंबई के प्रॉपर जो मुंबई के एमएलएज हैं। ये शिवसेना के जो एमएलएज है ना, ये कुछ नहीं थे। इनको जो कुछ मिला है, नाम फेम सब कुछ, ये मिला है शिवसेना की वजह से। ये 3-3 4-4 टर्म, अभी बोरनारे सर तो फर्स्ट टाइम बने हैं, मगर ये बाकी ये जो है ये सब शिवसेना की देन है। अगर ये कल अपक्ष खड़े होते ना, इनको 5,000 वोट नहीं मिलने वाले। ये जो कुछ है ये सिर्फ शिवसेना की देन है, शिवसेना का लेबल है। इसलिए ये जिनके आ रहे 3-3 बार। कोई रिक्शा चलाता था, कोई शुगर मिल में स्लिप बॉय था, पर्चियाँ फाड़ता था, कोई पान टपरी चलाता था, कोई ठेला चलाता था, कोई सब्जियां बेचता था। ऐसे लोगों को शिवसेना ने एमएलए बनाया है। और ये लोग अगर वहां पे बागी बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं शिवसेना का हिडन सपोर्ट, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 50 54 में से अगर 50 एमएलए अगर बागी बन रहे हैं, और उसमें बच्चू कडू जो ऐसा आदमी अगर जा रहा है, तो भाई गेम कुछ बड़ा है। गेम कुछ बड़ा है। और गेम क्या है? जैसे राकेश शर्मा जी ने कहा था, 14 जून के बाद में हर कोई अपना असली चेहरा दिखाएगा, हर कोई अपने असली चेहरे के सामने आएगा, जो उन्होंने पर्दा रखा है खुद के ऊपर। तो ये जो शिवसेना के जो एमएलएज है, जो शिवसेना जो अपने चेहरे के ऊपर एक हिंदुत्व का चेहरा उसने रखा था, 2.5 साल कहाँ गए थे भाई साहब आपके? 2.5 साल सत्ता में थे आप, आज आपको याद आया है? महामारी का नाम ले रहे हो, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? हमको, अपने जिसको पूरी महामारी का चड्डी फेड़ डाली, हमने नंगा कर दिया महामारी को। आप हमको बोल रहे हैं कि आप महामारी का ड्रामा की वजह से हम 3 दिन खामोश बैठे। सरनाइक के ऊपर अगर ईडी इंक्वायरी आ सकती है तो शिंदे साहब कैसे बच गए ईडी इंक्वायरी से? भुमरे साहब कैसे बच गए? भुमरे साहब ने मेरे जमीन के मैटर में खुद 25 लाख रुपए खाए हैं। 4 करोड़ रुपए का पेमेंट था मेरा, मेरे खुद का गट नंबर 19 बंगला तांडा पैठन डीएमआईसी, 4 करोड़ रुपए का पेमेंट था, जिसमें भुमरे साहब ने इंटरफियर करके वो इलीगल पेमेंट एसडीएम के थ्रू पास करवाया है, जिसकी मैंने क्राइम का जो केस है, क्रिमिनल मैटर, मैंने पैठन कोर्ट में डाला है और हाई कोर्ट में भी वो मैटर डाला है।
मेरी ईडी से इंक्वायरी, एक रिक्वेस्ट है, ईडी से मेरी रिक्वेस्ट है, संदीपान भुमरे जी की इंक्वायरी कीजिए। उन्होंने मेरे मैटर में कम से कम 25 लाख रुपए खाए हैं। 4 करोड़ रुपए का पेमेंट था मेरा, 4 करोड़ रुपए का, और ऐसे 57 मैटर है जिसमें उन्होंने पैसे खाए हैं। अगर एक बंदे से अगर 25 लाख है तो 57 लोगों से अगर 25-25 लाख लिया जाता है तो कितना बड़ा अमाउंट हो रहा है। ये ईडी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर सच में अगर इनको डर लगता है ना तो मेरी जमीन का 4 करोड़ का पेमेंट मेरे को लाके दिलाओ। शिवसेना का ये ड्रामा आपको समझना है ना, तो मैं आपको सीधा तौर पे बोलता हूँ, ये सारा का सारा भ्रष्टाचार, झांकने का, दबाने का, छुपाने का ये मैटर है, ये कुछ नहीं है। और इनके ऊपर ईडी की इंक्वायरी बैठी है, इसलिए ये लोग अब बीजेपी के साथ जाएंगे। बीजेपी ऐसा डिटर्जेंट पाउडर है जिसमें कोई भी अगर जाके धुल जाता है तो साफ हो जाता है, क्लीन हो जाता है। जो भी है आपको कर लीजिए, जो भी ड्रामा है कर लीजिए, हिसाब सबका होगा, और हिसाब जो लेने वाला है वो एक्टिव हो चुका है। आप लोगों को ये समझेगा नहीं, इतनी अकल नहीं आप में, आपको सीधे बोलता हूँ मैं। बुरा लगे तो बुरा लगे, मेरे को लेना देना नहीं है। सुनना है तो सुनिए, नहीं तो मत सुनिए, भागिए यहाँ से। तो इस चीज़ों पे ध्यान रखिए कि ये लोग अपने फायदे के लिए सरकारें बदल रही है। आपको बदनाम करने वालों की संख्या बढ़ रही है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, ऐसे ही चलने दीजिए, ऐसे ही चलने दीजिए। बिल्कुल मेरे को जो भी करना है बदनाम बिल्कुल कर लीजिए, आपका नाम काट दिया जाएगा, आपको बचाया नहीं जाएगा। मुंह पे बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं मैं, मुंह पे बोल रहा हूं मैं। तुम्हारी गांड फटेगी, तुम्हारी लगेगी, तुम भीख मांगोगे, क्योंकि चूज करने का अधिकार जो है ना वो जिसको है उसके साथ पंगा नहीं लिया जाता है। हमें तो यही चाहिए, हमें नाम रखो, हमें गालियां दो कि तुम्हारा पत्ता हम कट कर देंगे। जिन जिन लोगों ने मेरे खिलाफ लिखा है, बात की है, उनका पत्ता कट चुका है। आपको सीधे तौर पे बोल देता हूं मैं, उनका पत्ता कट चुका है। आपको जो समझना है समझिए, जो कहना है कर लीजिए। तुम्हारा पत्ता कट चुका है और इस पे मुझे कोई ये नहीं है। आप लोगों का एक तो हमने जान बचाई, ये पागल लोग अपने फ्री विल भी बेच चुके हैं। इनको फ्री विल क्या यही पता नहीं है, इन बेवकूफों को फ्री विल क्या है इनको पता ही नहीं है। कोई सेफ प्लेस नहीं है भाई साहब, इस पृथ्वी पे कोई सेफ प्लेस नहीं है। अर्थक्वेक हर जगह आएंगे, बाढ़ हर जगह आएगी, बरसात हर जगह होगी। ये 4th D चल रहा है, पृथ्वी का ट्रांजिशन चल रहा है। ये 4th D, 4 डायमेंशन चल रहा है, ये ट्रांजिशन चल रहा है। और मैंने आपसे जैसे कहा था, भारत में सिर्फ 30 करोड़ लोग बचेंगे। तो जिन चूतियों को इन चूतियों को जो कहना है, जो करना है, जो मेरी बदनामी करनी है, जो कुछ करना है कर लो, बिल्कुल कर लो मेरे भाई साहब। मुझे कोई फर्क नहीं गिरता है। और जो यूएल सिटी में गए ना भाई साहब, आपने एग्रीमेंट साइन किया है, आपने आपकी सोल बेच दी है। यूएल सिटी इज नथिंग मोर देन द
इल्यूमिनाटी, ये अलग क्लब है, कबाल है वो अलग कबाल है, दोनों सेम है, दोनों में भी आपकी सोल एग्रीमेंट होती है, आप अपनी सोल बेच चुके हो। तो यहाँ पे आके मेरे को समझाने के लिए ट्राई मत करो। क्या ये जंग जो है वो धर्म की जंग है, और धर्म किस पे होता है? धर्म आत्मा के लिए होता है, आत्मा सोल के लिए होता है। क्या तो ये धर्म युद्ध है, और इस धर्म युद्ध में बस वही लोग है हमारे साथ टीका लिए, उन लोगों का इस हीरो स्टाइल। तू क्या खा रहा है? मैंने तुझसे पूछा, कौन नॉनवेज खाता है, कौन नॉनवेज नहीं खाता है, कौन सिगरेट पीता है, कौन सिगरेट नहीं पीता है, कौन तंबाकू खाता है, कौन तंबाकू नहीं खाता है, कौन गुटखा खाता है, कौन नहीं खाता है, कौन ड्रिंक करता है, कौन ड्रिंक नहीं करता है। इस पे कुछ बेस नहीं है। बेस जो कुछ है वो सब कुछ है आपके कर्मा के ऊपर। आपके दिल में लोगों के लिए क्या इच्छा है, क्या भाव है, आप में से कितने हम बने हैं, और आपके कर्मों में कितनी क्रिएटिविटी है, लेस देन द डिस्ट्रक्शन। इस चीज को समझिए। आप लोगों को, इन बाबा लोगों ने, इन भोंदू लोगों ने आपके ऊपर जो योग और जो राम कथा और जो ये जो है, इसके वजह से आप लोगों को नपुंसक बना दिया है। आप इस बात को समझो। इन बाबा लोगों ने, इन राम कथाओं ने, ये एजेंडा ही उस तरह से चला गया है गए 25 सालों से। ये भगवत कथाओं ने आप लोगों को नपुंसक बना दिया है। राम जपो, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। नाम जपने से अगर होता था तो अर्जुन को महाभारत नहीं करना पड़ता था, भगवान श्री कृष्ण को भगवत गीता बताने की जरूरत नहीं गिरती थी। नाम जपने से कुछ नहीं होता है, कर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आपका कर्म करना पड़ेगा। क्या और जिन अंधभक्तों को और जिन हिंदूवादियों को यहाँ पे मिर्ची लग रही है राम कथा, भगवत कथा के नाम पे, आप लोगों को असली धर्म नहीं सिखाया गया है। असली धर्म कर्म है। कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। आपको यही नहीं सिखाया है। जाने दीजिए। राम के नाम से संतुष्टि मिलती है तो फिर श्री कृष्ण अवतार क्यों हुआ भाई साहब? अगर राम के नाम से सब कुछ था तो श्री कृष्ण अवतार क्यों हुआ? क्योंकि द्वापर युग के बाद में त्रेता युग जो हुआ, तो त्रेता युग में कलयुग की कैसे जिया जाए ये सिखाने के लिए महाभारत हुआ। अगर इतना ही बड़ा था श्री राम जी का नाम तो 1500 साल भारत क्यों प्रारंभ में था? योगेश पांडे, तेरी बुद्धि थोड़ी छोटी है, जरा अपग्रेड कर उसको, थोड़ा अपग्रेड कर। नेपाल में कल अर्थक्वेक हुआ है, अंडमान निकोबार में अर्थक्वेक हुआ है, परसों का अफगानिस्तान का अर्थक्वेक आपने देखा है। अब जो है वो कश्मीर की और से लेके गुजरात की जो प्लेट है वो अब वायबल हो चुकी है, वो वायबल हो चुकी है। मुंबई में हार्ट अटैक, डेथ, इट्स नॉट अ हार्ट अटैक, इट्स अ कार्डियक फेल्यूर, इट्स अ कार्डियक फेल्यूर। सडन एक्यूट
डेथ, SAD, सडन एक्यूट डेथ, इसको इन्होंने हार्ट अटैक का लेबल चिपकाया है। नई महामारी में 200 गुना हार्ट अटैक के केसेस बढ़ेंगे और हार्ट अटैक से लोग मरेंगे चौथी लहर में, ये कह रहे सरकार। ये सरकार नहीं है, इन लोगों ने आपके डेथ वारंट इशू कर दिए हैं। इन लोगों ने आपको मौत के वारंट इशू किए हैं इन्होंने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो था वो गए हफ्ते 12 पे जा रहा है पुणे का, जो 3 पे था, कुछ जगहों पे 20 पे जा रहा है। कल एक न्यूज़ आई थी, मैं डालूंगा टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे। एक बंदे ने ब्लड डोनेट किया और उसके ब्लड डोनेशन की वजह से 108 लोगों को एड्स हो गया। मैंने कहा ना, जिन्होंने ठुकवाया है उनके बॉडी में SV40 नाम का जो वी गया है, और उस वी की वजह से उनके अंदर कैंसर हो रहे हैं, उनके अंदर एड्स हो रहा है, और जो भी उसका ब्लड अपने खून में लगवा रहे हैं उनको एड्स हो रहे हैं और वो एड्स ट्रांसफर हो रहे हैं। हाँ, मैंने कहा आपसे, तेरे बाप का गुलाम हूं मैं। न्यूज़ का लिंक दो, चल नहीं देता मैं। चल नहीं देता मैं, क्या करता जा। देख भाई, प्यार से पूछेगा ना तो हम सब कुछ देंगे। ऑर्डर करे ना, तेरे बाप के गुलाम नहीं है। मैं तो नहीं हूँ, वो होंगे बाकी के जो हाँ जी हाँ जी हाँ भाई साहब, हाँ भाई साहब मैं बात करता हूँ करने वाले। यस, आई टॉक लाइक अ विलन, यस आई एम अ विलन, आई एम अ विलन ऑफ द इल्यूमिनाटी, आई एम अ विलन ऑफ कब्बाल, आई एम अ विलन, आई एम नॉट अ गुड मैन, आई एम अ बैड मैन। इफ यू आर अ बैड, आई एम योर डैड। तो याद रखना, क्या? इफ यू आर अ बैड, आई एम योर डैड। और हम बहुत अच्छे से हैं, और हम बहुत अच्छे से हैं। हम कह के लेते हैं। ये जो डायलॉग है ना, इफ यू आर बैड आई एम योर डैड, ये हम कॉलेज लाइफ से बात करते हैं। ये तो पिक्चर वालों ने बाद में उठाया होगा, ये हम कॉलेज लाइफ से बात करते हैं डायलॉग्स पे। हम वो है जो उड़ती चिड़िया के पर बोलना पड़ रहा है मेरे को, पर गिन लेते हैं। हम वो है जो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। एक्चुअली डायलॉग है, हम वो है उड़ती चिड़िया के झट गिन लेते हैं। क्या? तो प्यार से इज्जत से बात कर रहे हैं तो इज्जत में रहिए। इज्जत से बात कर रहे हैं तो इज्जत से कीजिए। हम बेइज्जती करनी है तो बहुत अच्छे से लेंगे हम। रेडिएशन का असर उन लोगों पर भी होगा जिन्होंने टीका नहीं लिया है। बिल्कुल, जिन्होंने टीका नहीं लिया है उन पे भी रेडिएशनल न्यूमोनिया हो सकता है। उन पे भी माइंड कंट्रोल MK अल्ट्रा जो है वो हो सकता है। मेरे दोस्त का बाप मर गया परसों, उन्होंने टीका लिया था लेकिन डॉक्टर बोल रहे हैं कि हार्ट अटैक आया है। नहीं भाई साहब, ये सडन एक्यूट हार्ट फेल्यूर है, ये मायोकार्डाइटिस है। इट्स कॉल्ड एज मायोकार्डाइटिस। ये जो हार्ट की जो मसल्स रहती है, उस मसल्स के ऊपर इन्फ्लेमेशन होता है और उसके वजह से आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, कार्डाइटिस, अर्थराइटिस। तो ये जो है ना, उसकी वजह से उस हार्ट पे स्वेलिंग आती है और इन्फ्लेमेशन होता है, उसकी वजह से वो हार्ट बंद गिर जाता है। तो इट्स अ मायोकार्डाइटिस, इट्स अ सीवियर सडन एक्यूट हार्ट फेल्यूर, इट्स अ सडन एक्यूट डेथ।
टीके को डिटॉक्स करने का एक ही दवा है और वो है सफ़ेद मूसली या काली मूसली। उसके सिवा और कोई दवा नहीं है, इसके सिवा कोई दवा नहीं है, यही दवा है। तो सबसे बड़ा खेल है आपके। और एक अब जो अग्निपथ की जो आप लोगों को ये लोग बता के, सब बता के आपके साथ ले रहे हैं। एक 130 करोड़ में से सिर्फ 30 करोड़ बचने वाले हैं। टेंशन मत लीजिए, अब जगाने का टाइम खत्म हो चुका है, ये बचने का टाइम है। अपनी अपनी जान बचाइए, अपनी परिवार की जान बचाइए। परिवार वाला सुन रहा है तो ठीक, उनको भी छोड़ दीजिए। अपनी अपनी जान बचाइए। अपनी अपनी जान बचाइए, और कुछ नहीं है। आंदोलन होने वाले हैं, और जो आएंगे आंदोलन में, वही बचेंगे। जिसको आना है वो आइए, जिसको नहीं सुनना है मत सुनो। इसकी बात मत सुनो, ये पागल है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसी कमेंट आती है ना, मेरे को दिल से सुकून होता है कि किन चूतियों को बचाने के नाद में लगा हूं मैं। क्या संजू ललवानी जी कह रहे हैं, आप जो कहते हैं वो होता है। सुन दास, सुन क्या लिखा है यहाँ पे। क्या लिखा है? बीजेपी के दल्ली, बीजेपी की दल्ली 25 पैसे तेरे को मिलते हैं कमेंट करने के। हम पागल है इसलिए बताने आए हैं आपको। हम पागल है इसलिए बताने आए हैं। पागल ही दुनिया चेंज करता है। जो नॉर्मल रहता है वो इज्जत की और अपने नाम की फिक्र करते हुए घर में बैठता है। जिसको कोई लेना देना नहीं नाम का, जिसको कोई लेना देना नहीं, लोग क्या कहेंगे उसको, पागल कहेंगे, क्या कहेंगे, जिसको कोई लेना देना नहीं है, वो पागल ही दुनिया बदलता है। क्या तो हमें कोई फर्क नहीं गिरता है, आप मुझे पागल को, बेवकूफ को, क्या झंडू लौड़ा लहसुन क्या कहना है, हमको कोई फर्क नहीं गिरता है। हम हमारा काम कर रहे हैं, 2.5 साल से कर रहे हैं, अभी भी करते रहेंगे। आप लोगों को जगाना मेरा काम था। भारत में 10 दिन का राइस बचा है। आप सब इस शिवसेना मैटर, आप देखिए जब से शिवसेना का मैटर स्टार्ट हुआ है, जब से शिवसेना का मैटर रहा है, तब से नुपुर शर्मा का मैटर गायब हुआ है। आपने देखा है मैटर, जब से नुपुर शर्मा का मैटर चालू हुआ था, भारत में आंदोलन स्टार्ट हो गए थे। और जब से शिवसेना का मैटर हुआ है, और जो आंदोलन चल रहे थे इस अग्निवीर और अग्निपथ के खिलाफ, सारे के सारे गायब हो गए। समझा डायवर्जन क्या है? बड़े मैटर को छुपाने के लिए बड़ा डायवर्जन लाना चाहिए। आप लोगों को समझा नहीं है, आप लोग समझते नहीं हो। आप लोगों को समझा नहीं। जैसे मैंने कहा था, भारत की हेल्थ मिनिस्ट्री मोदी साहब ने 8 जनवरी 2020 को बिल गेट्स को चलाने को दी। ये न्यूज आप देख नहीं पाए, क्योंकि
दीपिका पादुकोण को जेएनयू में भेजा गया फोटो निकालने के लिए। बस 72 घंटे वही न्यूज चलती रही। बड़ी न्यूज जो हेल्थ मिनिस्ट्री बिल गेट्स को चलाने को दी, और जिस आदेश के ऊपर ये लॉकडाउन लगे, जिस आदेश के ऊपर मास्क लगा, जिस आदेश के ऊपर टीका लगा, जिस आदेश के ऊपर इकोनॉमिक क्राइसिस हुई। अभी मैं आपको सुना रहा था न्यूज, सुबह जब आ रहा था मैं तब, तो आपने सुना न्यूज क्या थी? ब्रेक्जिट की न्यूज थी। मोदी साहब ब्रेक्जिट को जो है वो अच्छा बोल रहे हैं कि जो वैश्विक महामारी है, जो वैश्विक महामारी की वजह से वैश्विक इकोनॉमिक क्राइसिस हो रही है, उसकी वजह से हम लोग क्राइसिस में जा रहे हैं। भाई साहब, आप लोग क्राइसिस ला रहे हो। इकोनॉमी, पूरी दुनिया की इकोनॉमी क्राइसिस जा चुकी है। आपके राइस, गरीबों को राशन में मिलने वाला 1 तारीख से राइस बंद होने वाला है। आपको 1 तारीख से चावल नहीं मिलने वाला है। इस शिवसेना के ड्रामे के पीछे आपकी इतनी बड़ी न्यूज आपसे छुपाई गई है। आप इस बारे में ना देख पाओ, आप इस बारे को समझ ना पाओ, इसलिए ड्रामा चलाया गया है। जिस आसाम में 34 डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ आई हुई है, लाखों लोग वहां पे आसाम में फ्लड में, बाढ़ में बिजी फंसे हुए हैं, तकलीफ में हैं। और उसी आसाम के गुवाहाटी में महाराष्ट्र के 50 एमएलए जाके बैठ के 5 स्टार होटल में पार्टियां कर रहे हैं। इसलिए हमारे लिए, क्योंकि इनके सीएम इनको मिल नहीं रहे थे। अरे भाई साहब, आपने गए 50-60 सालों में, जब से महाराष्ट्र फ्री हुआ है, 1961 में महाराष्ट्र फ्री हुआ, रास्ते बने हैं, रास्ते बने हैं महाराष्ट्र के, इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है महाराष्ट्र के गांवों में, बच्चों को स्कूल में, जिला परिषद के स्कूल में आप ग्रेजुएशन दे रहे हैं। चील मार दास, चील मार। टीका लग के 3 साल नहीं हुए हैं, तेरी अकल जरा कमजोर है। 3 साल नहीं हुए टीका लग के। टीका लग के 1 साल 4 महीने हुए हैं। 16 जनवरी 2021 को टीकाकरण स्टार्ट हुआ भारत में। आज जून चल रहा है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 1 साल 5 महीने हुए हैं। कितने हुए हैं? 1 साल 5 महीने। और मैंने कहा था टीका लिए वाले 5 साल में मरेंगे। मैंने कहा था टीका लिए वाले 5 साल में मरेंगे। ये डॉक्टर लूक मॉन्टेगर का स्टेटमेंट था कि जो टीका लिया है वो 2 साल में मरेंगे। तो मेरी तरफ से तो 5 साल का टाइम दिया था मैंने, जो मेरी स्टडी है। ये डॉक्टर लूक मॉन्टेगर बीच में आ गए, जिन्होंने स्टेटमेंट दिया कि 2 साल में मर जाएंगे। हा? उद्धव साहब सीएम रहेंगे क्या? नहीं नहीं, बैठा हूं मैं, लाइव चल रहा है। हाँ, तो अटेंशन सीकर, मुझे पता है तो अटेंशन सीकर है। नहीं नहीं, अच्छा है। जब ये कोई इसने कमेंट किया तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ब्लॉक कर सकता हूं मैं, पाटिल साहब, मैं इसको ब्लॉक कर सकता हूं। इसको एक सेकंड नहीं लगेगा मुझे ब्लॉक करने के लिए। मगर इसने कमेंट किया कि 3 साल हो गए, तो ये इनकी आईक्यू समझ में आ रही है। इसकी आईक्यू जो है ना, वो 4th स्टैंडर्ड के बच्चे जितनी है। ये जब से महामारी आई है तब से काउंट कर रही है। अब महामारी आई तब से काउंट मत कर, जब से टीका लगा है तब से काउंट कर। टीका लगा है 2021 के 16 जनवरी 2021 से।
तो इसकी आईक्यू जो है ना वो बच्चे दिखती है। नमस्कार नमस्कार। तो दोस्तों, आप इस बड़े खेल के पीछे आप मेन खेल समझ नहीं पा रहे हो। आपका राशन ये बंद कर दिए हैं। भारत में अगले 10 से 12 दिन प्रोवाइड होगा इतना चावल है। भारत में अगले 60 से 70 दिन प्रोवाइड होगा इतना गेहूं। आपके घरों में रखा है उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं वो बात कर रहा हूं जो भारत के सरकार के गोडाउन में है, जिससे 80 करोड़ लोगों को राशन जाता है और जिससे बचे हुए 40 करोड़ लोगों के लिए जो भी आप लेते हैं सामान वो आता है। मैं उसकी बात कर रहा हूं। आपके घरों में अगर भर के रखा हुआ है आपने, वो काउंट नहीं कर रहा हूं मैं। जो सरकार के पास आंकड़ों में लिखा गया है वो काउंट कर रहा हूं। तो भारत सरकार के पास आज सिर्फ 60 से 70 दिन का गेहूं, 10 से 12 दिन का चावल ये है। जैसे ही राष्ट्रपति चुनाव हो जाएंगे, देखो, जैसे ही विधान परिषद के चुनाव हो गए, इन्होंने महाराष्ट्र की सरकार चेंज करने का ड्रामा चालू कर दिया। हिमांशु कुमार जी, मैं अभी क्लिनिक पे नहीं हूँ, मैं एक्चुअली क्लिनिक के बाहर हूँ, मैं कार में हूँ, इसलिए मेरे पास मशीन नहीं है, इसलिए आज की रीडिंग में नहीं दिखा पाऊंगा। इंडिया में तांडव होगा, इंडिया में तांडव स्टार्ट हो चुका है। भारत में आसाम राज्य की कंडीशन देख लीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग तांडव की अपेक्षा मत कीजिए। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जाके भगवान शिव शंकर जी के ऊपर बेल और जल अर्पण कीजिए। दूध नहीं कहूँगा मैं, जल अर्पण कीजिए, उसको प्रार्थना कीजिए कि तांडव मत कीजिए भारत में। एक्सपेक्ट करता हूँ मैं, क्योंकि अगर तांडव होता है, बस इतना मौका मिलता है। यस, धतूरा, बेल, मैंने देखा है ये मेडिटेशन में, ये डायमेंशन में, ये मैंने चीज देखी है। ये बहुत भयंकर होने वाला है, बहुत भयंकर। और ये स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये आज के लिए नहीं हो रहा है, ये अगले 3 से 4 सालों के लिए स्टार्ट हो रहा है। ये अगले 3 से 4 सालों के लिए स्टार्ट हो रहा है। इतना एक्सट्रीम होने वाला है। मैं डरा नहीं रहा हूं आपको, मैं वार्न कर रहा हूं, और उसके लिए जो प्रिपरेशन लगती है वो आप कीजिए। मैं आपको ये बता रहा हूं। आप लोग डरते हैं, मैं क्या करूं, मैं आपको समझाने आता हूं कि ये करना है आपको। आप लोगों का आप प्रिपेयर कर रहा हूं मैं। समुद्र की लेवल बढ़ रही है, मुझे फॉलो मत करो। मैं कभी नहीं कहा है मैंने किसी को मुझे फॉलो करो। क्या आप लोगों को मैंने 50 बार कहा है कि मैं जो कहता हूं वो कान से सुनने के बजाय अपनी आंखों का, इन 4 उंगलियों के बीच में जो आता है, उस आंखों का उपयोग करो और जाके इसको सर्च करो। आप लोगों को मैं जगा रहा हूं, बता रहा हूं, जिन लोगों ने मेरी बात सुनी है। भूकंप आए तब कैसे बच सकते हैं आपको? अब कैसे बचेंगे? सीधी बात है, आपको मल्टी फ्लोर्स बिल्डिंग से दूर रहना है। आपको मल्टी फ्लोर बिल्डिंग से दूर रहना है। भूकंप आता है कि अगर घर हो सके तो जल्द से जल्द रास्तों पे आइए, ओपन प्लॉट पे, ओपन जगह पे आइए। अगर नहीं आ पा रहे हैं तो जो भी आपके घर में फर्नीचर है, टेबल हुआ, डेस्क हुआ, उसके नीचे खुद को कवर कर लीजिए। जैसे मैंने कहा, इमरजेंसी किट, जिसमें आपका कम से कम 3 से 4 दिन सरवाइव कर पाएंगे, उतना आटा, चावल, दाल, माचिस,
आपका केरोसिन के ऊपर चलने वाला स्टोव, या फिर नहीं कुछ तो कम से कम माचिस की डिब्बी, यानी कल लकड़ी भी जमा करके 3 पत्थर रख के, एक भगोना, एक पानी बोतल, कम से कम 5 लीटर 10 लीटर वाली। ये एक इमरजेंसी किट जिसमें फर्स्ट एड हो, ऐसी एक इमरजेंसी एक किट आपके डोर के पास, खास करके जम्मू कश्मीर यानी हिमालयी रीजन, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, ये रीजन। और सेकंड जो आता है वो जो हिमालय से लेके हिमाचल प्रदेश, नेपाल, आसाम, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश और नीचे होते हुए अंडमान निकोबार से इंडोनेशिया की तरफ जाने वाली प्लेट। ये रीजन के जो लोग हैं, श्रीनगर नहीं, मैंने कहा ना जम्मू कश्मीर, तो श्रीनगर भी उसमें ही आता है। तो ये प्लेट जो है, यहाँ के रीजन के लोग से एक्टिव रहिए, थोड़ा से जागरूक रहिए, एक्टिव रहिए। और इमरजेंसी किट, और खास करके जो समुंदर के पास है, तो जब सुनामी आती है, चेन्नई वालों, सुनामी का धोखा है आपको। अगर अंडमान निकोबार में या फिर इंडोनेशिया में अगर भूकंप आता है तो आपके यहाँ पे सुनामी आ सकती है। सोलर फ्लैश चालू है भाई साहब। डार्क नाइट जी, सोलर फ्लैश चालू हो चुके हैं। गए 8 दिन से सी क्लास पे चल रहे थे सोलर फ्लैक्स, वो अब आए हैं लगभग एफ या जे क्लास तक। सेफ कोई नहीं है भाई साहब, मैंने आपको पहले ही कहा है। अगर जहाँ पे अर्थक्वेक नहीं आएगा तो वहाँ पे हेवी बारिश होगी, वहाँ पे फ्लड्स आएंगे, वहाँ पे तूफान आएंगे, अतिवृष्टि की वजह से फसलें नहीं पैदा होगी, तो फूड क्राइसिस आएगा, खाना नहीं मिलेगा, तो इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाएगी। जो चीज़ आज 50 रुपये 60 रुपये किलो से मिल रही है वो 200-300 रुपये किलो चल जाएगी। जो चीज़ आज 60-70 रुपये किलो पे अगर दूध मिल रहा है तो 500 रुपये। आपने मेरे ख्याल से न्यूज़ सुनी नहीं होगी आपने कि पाकिस्तान में जो है वो चाय पीना सरकार ने मना कर दिया है क्या? तो इन सब चीज़ों को समझिए। महाराष्ट्र में आने वाली सरकार किसकी होगी? पूरी दुनिया को पता है आने वाली सरकार बीजेपी की और शिवसेना के जो सो कॉल्ड देखो रीना, ये कौन है? कोई तो भी दास है और एक कोई तो भी और एक लड़का आया है। मैंने मेरा एक वीडियो है ना कल टेलीग्राम पे डाला था। एडवोकेट विभोर आनंद जो है ना, एडवोकेट विभोर आनंद, उनके साथ का मेरा एक वीडियो था, मेरा एक इंटरव्यू था, लगभग 3 घंटे का था। 3 घंटे का वो वीडियो था, वो मैंने कल डाला है। कल वो वीडियो मैंने डाला है और वो उसमें मैंने जो है वो एसएसआर का जो इंस्टाग्राम के पोस्ट थे और ट्विटर पे उसने जो पोस्ट किए थे वो मैंने एक्सप्लेन किए हैं। एक्सप्लेन, जब मैं मेडिटेशन की और आपको डिवाइन की और डायमेंशन की मैं बात नहीं कर रहा था,
2021 के मार्च महीने का वो वीडियो था जो मैंने डाला है। उसमें मैंने आपको कई सारी चीज़ें बताई है जो कि एक्चुअली मैंने डायमेंशन के वक्त भी नहीं बताई है, ना कि मैंने बाकी चीज़ों में बताई है। वो चीज़ें मैंने तब बताई थी। बाहर आया मैं, मेरे यहाँ पे आवाज़ ज़्यादा है। तो वो चीज़ें मैंने तब बताई थी। तो आप लोगों को ये सब चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। जो चीज़ें मैंने आपसे एक्सप्लेन करने में रह गई है वो मैंने कहीं ना कहीं अलग अलग वीडियोस में बोली है। और ख़ास करके विभोर आनंद जी का जो वीडियो है, मेरा इंटरव्यू, वो प्लीज़ देख लीजिए। उस वीडियो में मैंने बहुत सी चीज़ें बोली है जो मेरी गलती से बाद में मैंने बताई नहीं होगी, क्योंकि वो जो फ़ोटोज़ थे तो उस फ़ोटोज़ को देख देख के वो चीज़ें मेरे को तब याद आती गई और मैं वो बताते गया। डायमेंशंस, 5D, 3D, मल्टीवर्स, ब्रह्मनाद, युगा, फ्रीक्वेंसीज, ब्लू फ्रीक्वेंसीज। तो उसमें मैंने बहुत कुछ बोला है। मेरे को भी याद नहीं मैंने क्या क्या बोला है। मुझे नहीं पता है ब्लैक स्वॉन क्या है। मैं टेलीग्राम पे हूँ। मैं मेडिटेशन नहीं करता हूँ भाई साहब, मैं सच बोलता हूँ आपको। मैं मेडिटेशन नहीं करता हूँ। मेडिटेशन कैसे किया जाता है मेरे को नहीं पता है। जब मैं डायमेंशन में जाता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली कुछ लोग चोजन रहते हैं जिनको डायरेक्टली चूज किया जाता है सब कुछ दिखाने के लिए, डायमेंशंस और मल्टीवर्स सब कुछ। और कुछ लोग रहते हैं जिनको प्रयास करना पड़ता है मेडिटेशन के थ्रू, और उनको होता नहीं है। जो बेचारे रहते हैं जिनको मेडिटेशन में जाके भी कुछ होता नहीं है, तो वो कार्मिक फल रहते हैं आपके। कार्मिक फल है कि आपको किस लेवल पे कर्मा है। हमारे कर्मा अच्छे हैं। प्रोटेस्ट करने से क्या होगा? सरकार दबा देगी। हम लोग फाइनेंशियली लिटरली सरकार बड़ी नहीं होती है, आप बड़े होते हैं। आपकी जिद बड़ी होती है। जिद पे अड़े तो सरकार से बड़े। तो इस चीज को समझिए। जो इस चीज को समझा उसका ही कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। हाँ, मुंबई में हार्ट अटैक्स 6 गुना बढ़े हैं, ये न्यूज़ आई है, सुना है मैंने। ये न्यूज़ तो सुनी है मैंने कि 6 गुना बढ़े हैं हार्ट अटैक। मगर इस चीज़ को आप समझिए, ये हार्ट अटैक नहीं बढ़े, ये पहले से केसेस बढ़ रहे हैं। इन चीज़ों को आप समझ नहीं रहे हो। चलो, धन्यवाद सभी का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जो जागेगा वही बचेगा। और हमारे बारे में बुराई ऐसे ही करते रहिए। हमारे बुराई करते करते अपना आप नाम जप रहे हो ये अच्छी बात है। जो जागेगा वही बचेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।